about that region. This is what? Ocean. What happens? The moisture laden winds, when they will come, suppose this is a continent, कोई भी एक continent है, ठीक है, this is the eastern margin of the continent and this is the western and this is the central part, ठीक है. If a moisture laden wind in tropical, what type of winds blow? Tropical region, what type of winds blow? Easterlies or westerlies? What is the direction of the wind? Winds are blowing from east to west. This is the direction mostly, ठीक है. This is ocean. These winds are carrying moisture, ठीक है. So what type of, here it will create rain, है ना, rainfall. Here what type of grasses and trees will be there? Long trees and huge diversity will be there. Humid region, ठीक है, क्योंकि इस साइड it will be humid and tall trees will flourish, ठीक है. When it will come further, wind will flow, moisture कम हो जाएगा because it has already precipitation has happened. Here it will be, when it will flow, here will be less rainfall. So small grassland and shrubs will form in the continental region, in the center of the continent. So these are called grasslands. Small plants, small shrubs or small trees, not well developed branches and trees. Okay, understand this concept. Okay, ठीक. Again moving further, it doesn't, the wind is not having not a 10% or 10 centimeter or single % of water, so this will be a very dry region. So what it will form here? Desert. It will form desert on the western coast. So it is applicable whole in the whole world. Okay, पूरे मैप में when you will look, the area between 10 degree to 30 degree and western margin of the continents will have desert. Is it clear? क्यों हो रहा है? ठीक है. अब यही चीज अगर आप ऊपर ले जाओगे, any issues you? Four of you getting clear? Clear हो रहा है आपको? चलो अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में फिर डेजर्ट्स कहाँ पे फॉर्म होंगे. नॉर्थ अमेरिका का लैटिट्यूड वेयर इट इज लोकेटेड, ज़्यादा डेजर्ट नहीं है, छोटे से छोटे डेजर्ट हैं. वेयर इट इज लोकेटेड नॉर्थ अमेरिका, लैटिट्यूड, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अमेरिका? नियर, दिस विल इज द रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला पार्ट होगा 30 के आसपास. सो देर आर वेरी फ्यू, दिस Sierra Nevada और Sierra Madre, these are the desert regions of, और एक और Sonoran, it is not mentioned, you write Sonoran you write near Sierra Nevada. This is the desert. And Mojave, spelling you write M-A, it's not H, it's J. It is pronounced as Mojave but it is written as J, ठीक है. Another desert is this one. These two names you have to remember with respect to desert in North America. Sonoran, I'm writing again on the fresh page. यहाँ पे this portion I'm talking about, यहाँ पे आप देखो, you write Sonoran and if not written you write it down, पेन से आप लिख लो. This is Mojave, ठीक है. They both are at the boundary of USA and Mexico. Remember the location where they are located, near. Getting? आपको मिला? हाँ, आप लिख लो वहाँ पे वो, you write it down, okay, because they are important. अधिकतर maps they skip this always. हाँ, yes, you tell. How many degrees it lies? This is, I have drawn na, this was, what was this line? What was this boundary going from in the center of the sea? What was that? Capricorn it was? It was a tropical region, right? 23 degree and half. So it is near to that region only we are talking, at the boundary of USA and Mexico. So it is near to 30 degree latitude only. आप वहाँ पे मेंशन कर लो या नोट्स के, जहाँ जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, there you write, okay?
सोनरन एंड मोहावे डेजर्ट, ठीक है, ओनली दीज 2 डेजर्ट्स इन दिस नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. You are getting Sobu? Understanding what we are studying? How what? Lots of movies and all, cowboys and all, like lots of. हाँ, नियर लॉस एंजलिस यहीं पे पड़ता होगा. यू मस्ट अब मिल जाएगा. इज इट ओके? क्या हुआ? सब ठीक? आप कंप्लेन कर देना बाद में जाके, आपका वो फ़ोन चोरी हुआ है ना, उसकी वजह से टेंशन में हो. आप एक बार जाके पुलिस में, साइबर सेल में जाके कंप्लेन कर देना. एटलीस्ट कुछ तो करेंगे. वैसे बहुत मुश्किल होता है मुखर्जी नगर में ढूंढना. 3 फोन चोरी हुए, कुछ नहीं करते. अच्छा, उसको या तो ब्लॉक करवा दो, उसमें कुछ कार्ड वार्ड लिंक्ड है उससे, तो वो आप ब्लॉक, वो आप इंटीमेट कर दो. पुलिस को इंटीमेट तो ज़रूरी कर दो आई वुड से, है ना, कि मिसयूज़ होने से बच जाए. आपने किया? चलो ठीक, चलो ओके ओके, इनफ इनफ इनफ, होता है, कोई नहीं. चलो नॉर्थ अमेरिका वी हैव डन. एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे. एक येलोस्टोन पार्क फेमस है. यहाँ पे आप सर्च करो येलोस्टोन नेशनल पार्क इस रीजन में. हाँ, गीजर, जैसे जियोथर्मल एनर्जी. ये आप लिख लो, येलोस्टोन नेशनल पार्क जियोथर्मल एनर्जी के लिए. ये वाला रीजन ब्रिटिश कोलंबिया के पास. नहीं, डेजर्ट तो नीचे बताया मैंने 30 डिग्री के पास. ये ऊपर ऊपर कनाडा और यूएसए की जहाँ बाउंड्री है, ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे दिख रहा है उसके पास. या नोट्स में आप लिख लो, जियोथर्मल एनर्जी इज वेरी, जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है. येलोस्टोन नेशनल पार्क, ओके. यहाँ तक क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? इसमें कहीं मेंशन नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको. मैप में नहीं मिलेगा क्योंकि वो छोटा सा पॉइंट होगा ना, तो नहीं दिखेगा मैप में. आप सर्च मत करो उसको, बस लिख लो ऐसे. कभी एक पॉइंट एग्जाम वगैरह में आ गया तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है. नाउ दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट. हमने पढ़ा. फिर एक बार ब्रॉडर अगर हमको डिमार्केशन करना होगा, इफ वी हैव टू डिवाइड दिस फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, व्हाट यू कैन सी, दिस इज वन पोर्शन, ठीक है. दिस इज अनदर पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे प्लेट्यूज, दीज टू आर लाइक हाईलैंड्स. तो दिस पोर्शन, दिस ए पार्ट, इफ यू कंसिडर दिस ए, B and C, can we divide this in 3 parts? Here we saw what we all saw, all the mountains and plateaus and deserts, है ना. Here it was simple plain region, and here again little bit of mountainous region. So this region A part is called western Cordillera, ठीक है. यू ड्रॉ, सिंपल मैप ड्रॉ करो आप लाइक दिस. 2 सेकेंड अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. मैप नॉर्थ अमेरिका का कैसे ड्रॉ करोगे? हाउ यू विल ड्रॉ मैप फास्ट? Getting this? 3 major physical divisions.
सेंट्रल लोलैंड एंड दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड. अच्छा वे हाँ What are they? Like mountain? फिजियोग्राफिक डिविजन लाइक इन इंडिया वी हैव स्टडीड ना प्लेट्यूज हिल्स माउंटेन्स है ना. सो व्हाट आर दिस वी हैव डिवाइडेड होल नॉर्थ अमेरिका. यू कैन सी यू कैन डिवाइड फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया हिमालयन नॉर्दर्न प्लेन डेक्कन प्लेट्यू एंड आइलैंड्स लाइक दैट. इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 parts. ओके दे आर this western portion is western Cordillera, central one central lowland and the eastern one is eastern highlands. Now what I say when I say lowland or highland, इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना आ रहा है. कैन यू ड्रॉ नॉर्थ अमेरिका नाउ? इज इट नाउ कंफर्टेबल? ठीक है. हाउ मेनी मैप्स यू ड्रॉन टिल नाउ? 4, 5. चलो ठीक. 10 यू डन 10 बना लिए. चलो गुड. लव नोटबुक दिखाओ आप. मैम नोट नहीं है. तो फिर कहाँ बनाया आपने? प्रैक्टिस में. कहाँ प्रैक्टिस किया आपने? घर में. अच्छा चलो कल मैं देखूंगी. आज तक 10 किए हैं तो कल तक तो 20 हो जाने चाहिए ना. ऐसा तो यूट्यूब में थोड़ा मतलब मन होता है. अच्छा चलो. एक दिन में मन खत्म. 200 टाइम. हाँ आज साउथ अमेरिका भी बना के जाएंगे. ठीक है चलो. हैव यू ड्रॉन दिस मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स नॉर्थ अमेरिका? हाईलैंड में हम क्या पढ़ते हैं? अगर कॉमन सेंस लगा हुआ है हाईलैंड लोलैंड्स वो मैं ऐसे जस्ट बता रही हूँ. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? माउंटेन्स हिल्स एंड प्लेट्यूज. ठीक है. एंड लोलैंड में वी स्टडी अबाउट प्लेन्स एंड डिप्रेशंस. ठीक है. Getting the difference whenever I will mention highland means it is an uplifted land. ठीक है. lowland मतलब means plain land area. ठीक है. Getting? अब I mentioned this grassland specific mention I mentioned here. यहाँ पे बताया था grassland form हो रहा है यहाँ पे बीच में in the mid of the latitude mid of the continent. So obviously North America में भी form होगा कोई ना कोई यहाँ पे. Grasslands will be there क्योंकि plain land है. So famous one is the prairies of North America. You remember like this, prairies of North America. Special. And these are tropical or temperate. What is the reason in which latitude it is located? टेम्परेट है या टॉपिकल? खुद बताओ. ये कौन सा था हमारा? विच वॉज दिस लैटिट्यूड? 30 डिग्री एंड अबव दिस वॉज 60 डिग्री. सो दिस इज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स. दो टाइप के ग्रासलैंड्स आर देयर, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. नॉर्थ अमेरिका इज लाइंग इन द टेम्परेट रीजन, सो द ग्रासलैंड विल बी नेम्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड, दैट इज अ प्रेरी. ठीक है. चलो डन रिटन. चलो नाउ द नॉर्थ अमेरिका इज कंप्लीट. ठीक है. आर यू ऑल सेटिस्फाइड? कंप्लीट है, कुछ छूट तो नहीं था? ज़्यादा हो गया? ओके कोई नहीं, ज़्यादा है ज़रूरी. चलो एक बार रिवाइज करना या रिवीजन ही चल रहा है? ये तो कल का ही मैंने रिवाइज करा है सारा. इट इज गेट सेटिंग इन योर माइंड. चलो गुड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द yes